Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our today's online session. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the words of Holy Quran. Hopefully my voice is clear and screen share as well with you guys. Can anybody confirm me? Yes, sir. Are you screen? Thank you very much. We further moving towards our today's lab session. So to study the operation of reverse power, that is also called the direction over current flow relay. In reverse power phenomena, the current direction also be reversed, which is the normal direction of the current is from source to load. But if this direction is reversed, which is from load to source, that over that opposite current direction is also be related to the reverse power, which is detected by the reverse power relay. So in reverse power flow relay, detect the kind of these nature and condition. So furtherly moving towards the objective to understand the working principle of reverse power flow relay with direction over current relay features. रिवर्स पावर फ्लो के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि रिवर्स पावर जो हमारी होती है वो कुछ इस तरह की होती है, ये रिले होती है जो रिवर्स पावर अगर लोड से सोर्स की तरफ आ रही हो तो ये उसे डिटेक्ट कर लेती है और इसके अंदर हम अपने पैरामीटर्स एज अ प्रोग्राम के तौर पे इंटर करते हैं, यूज़र डिफाइन होते हैं और उसके मुताबिक ये रिवर्स पावर अगर लोड से सोर्स की तरफ आना शुरू हो जाए या फिर अपोजिट डायरेक्शन में पावर फ्लो होने लग जाए तो ये डिटेक्ट हो सकती है इससे. सो वी फर्दर continue with the theory of reverse power flow. When the power flows into the generator, it starts operating like a synchronous motor when the power is flow, and the turbine and prime mover becomes active load. This can damage the prime mover and is therefore undesirable. It is important to detect a reverse power condition and disconnect power as quickly as possible, because reverse power can damage the particular equipment which is produced, which is the source of electricity, and then through the gas turbine and diesel engines may not get damaged immediately. There is always a risk of explosion on fire. Risks of explosion and fire from the unburned fuel. रिवर्स पावर कंडीशन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग सिंक्रोनाइजेशन. जब हम सिंक्रोनाइजेशन कर रहे होते हैं सोर्सेज ऑफ जनरेटर्स के दरमियान, उस ड्यूरेशन में भी रिवर्स पावर फ्लो हो सकती है, बल्कि होती भी है जनरेटर के केस में. जब दो जनरेटर्स आपस में सिंक नहीं हो रहे होते तो उनमें से एक सोर्स और एक सिंक बन जाता है और रिवर्स पावर वो गेट करना शुरू कर देते हैं. और रिवर्स पावर के डिसएडवांटेजेस हमें आगे डिस्कस भी करेंगे. When the frequency of machine to be synchronized is slightly lesser than the bus bar frequency and then the breaker is closed. In such condition, power flow will from the bus bar to the machine. Therefore, during synchronization, frequency of the incoming machine is kept slighter than that of the bus bar. This ensures that the machine takes on load as soon as the breaker is closed. Reverse power relay could also be used for isolating direction. Whenever the difference between the load and available generation is also sufficient to obtain an appreciable rate of change of frequency, but active power continues to flow into the grid to feed external load. Reverse power relay with under frequency can be used to detect the loss of ग्रिड सप्लाई. अच्छा, ये बात तो जैसे कि यहाँ पे हो गई है कि जब
हम दो जनरेटर्स को आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मिसमैच के इश्यूज के नतीजे में भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती, और साथ ही साथ होता यह है कि इनमें रिवर्स पावर ऑफ फ्लो होने लग जाती है, क्योंकि अनडिजायरेबल है, हाईली अनडिजायरेबल है। सो उस सिनेरियो में हमें करने की जरूरत यह है कि सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन में इसलिए बस कपलर लगता है जनरेटर्स की इनकमिंग के साथ, तो साथ ही साथ जब लोड में से कनेक्ट होते हैं बस बार कॉमन बनाने के लिए, जो हर एक सर्किट ब्रेकर जनरेटर के साथ लगता है, उसके साथ ही साथ उन बस को आपस में कपल करने के लिए भी बस कपलर लगता है। तो जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन हो रही होती है तो उस वक्त या हो चुकी होती है तो बस कपलर को उस वक्त ऑन किया जाता है। लेकिन अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती तो उस सिनेरियो में रिवर्स पावर प्रोड्यूस होती है, और ये काम जो डिटेक्ट करने वाला है ये मॉड्यूल कर रहा होता है नॉर्मली। अभी थोड़ी देर पहले हमने सिंक्रोनाइजेशन डीप से 8610 के फीचर्स भी डिस्कस किए थे, जो सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल है। अब अगर ये आपस में सिंक्रोनाइज नहीं हो पाते तो उसके नतीजे में रिवर्स पावर प्रोड्यूस होती है। अच्छा, रिवर्स पावर डिटेक्ट करने के लिए जो रिले है डीप सी 8610, इसके अंदर ये फीचर होता है कि अगर रिवर्स पावर आपकी फ्लो हो जाती है तो जनरेटर्स के ब्रेकर को जो लोड के साथ कनेक्ट होता है उसको कट ऑफ कर दिया जाए, ट्रिप कर दिया जाए, और बस कपलर को भी एक्टिव ना किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में जो मेन एस्पेक्ट बनता है फ्रीक्वेंसी मिसमैच के नतीजे में, कि जब आप सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मशीन जो कि सिंक्रोनाइज हो रही होती है बस बार फ्रीक्वेंसी से जो स्लाइटली लेसर होती है, तो इन सिनेरियोज के नतीजे में जब सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाती तो रिवर्स पावर प्रोड्यूस होती है, और रिवर्स पावर जो है वो आपके सिस्टम को डैमेज कर सकती है, क्योंकि वो वापस किसी एक जनरेटर में रिवर्स में चली जाती है। A reverse power relay helps in monitoring the power in the generator. It detects a reverse power condition and the relay immediately removes the condition to the parallel utility or other power source, hence protecting the generators from damage. तो उनमें ये जो रिले है T2000, ये अपना एक बेसिक रोल प्ले कर रही होती है, ताकि जनरेटर्स को और टरबाइन के सिनेरियो में भी इनको प्रिवेंट करना होता है रिवर्स पावर से। तो ये डिटेक्ट करके ब्रेकर के जरिए से ऑपरेशन परफॉर्म करवाती है, ट्रिप करवाती है, और आपकी जो इक्विपमेंट है, सोर्सिंग इक्विपमेंट, उसको डैमेज होने से प्रिवेंट कर देती है। रिवर्स पावर रिले which is a protective relay which will actuate when it detects। actuate means ऑपरेट करवाना, एक्चुएशन सिस्टम हम परफॉर्म करवाते हैं, खास तौर पर मैकेनिकल ऑपरेशन की टर्म है एक्चुएटर्स, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल ये काम करवा रहे होते हैं। तो ये सिस्टम एक्चुएट करना, यानी इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एक्ट करवाने के सिस्टम को हम एक्चुएट करना या एक्चुएशन कहते हैं। When it detects that the power flow is in the reverse direction, this is usually used in generator protection, wherein the power is usually flowing out of the generator toward the load. If the power flow is going to the reverse direction, usually it present a problem or act as a fault. So this fault can be eliminated by the reverse power directional relay. A reverse power relay is a direction over current relay, even also we can say, because the direction relay are always that sense the power flow in one direction and include, क्योंकि जब इसकी डायरेक्शन रिवर्स होती है, करंट डायरेक्शन रिवर्स या रिवर्स पावर, तो उसके नतीजे में डायरेक्शन ओवर करंट रिले एक्ट करती है। इट इंक्लूड द डायरेक्शन ओवर करंट रिले, रिवर्स पावर एंड impedance based relays. So the reverse power relay is a directional relay even also, but the direction relay is not necessarily a reverse power relay. डायरेक्शन ओवर करंट रिलेज की अगर हम बात करें फर्दर, तो व्हेन द पावर सिस्टम इज नॉट रेडियल, रेडियल का मतलब अगर आप समझते हो, जैसे एक रिंग बेंग सिस्टम होता है और एक रेडियल सिस्टम होता है जिसके अंदर सबस्टेशन लगे हुए होते हैं, और उनमें दो सबस्टेशन के साथ जो सिस्टम बना हुआ होता है उनमें प्रोविजन ऑफ पाथ प्रोवाइड करने के वेज होते हैं, जिसके जरिए से आपका अगर एक साइड का सिस्टम इंटरप्ट हो जाए तो किसी दूसरे पाथ से उसको सप्लाई दी जा सके, तो उस सिस्टम के लिए रेडियल सिस्टम्स लगाए जाते हैं। इसका एक बेसिक सिनेरियो जो है वो रिंग मेन सिस्टम के सेंस में आता है। इस तरह तीन सिस्टम्स होते हैं, तो रिंग मेन, रेडियल और इंटरकनेक्टेड सिस्टम। इसमें बेस्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर मेनी ऑफ वेज ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ पाथ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके नतीजे में
आपका एक सिस्टम अगर डैमेज हो जाता है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए उसे बंद करना पड़ता है, ऑपरेटिव मेंटेनेंस के लिए उसे बंद करना पड़ता है, तो आप दीगर वेज के जरिए से उसको पाथ प्रोवाइड करके एक्टिवली रोल प्ले करवा सकते हैं. सो direction over current relays, reverse power and impedance based relay. So the reverse power relay is a direction relay, but the direction relay is not necessary to be reverse power relay. Direction over currents की हम बात कर रहे थे when the power system is not radial, source on the side, one side of the line, an overcurrent relay may not be able to provide adequate protection. This type of relay operates in one in on direction of current flow and block in the opposite direction. क्योंकि डायरेक्शन ओवर करंट रिले का बेसिक मकसद यही होता है कि वो ओवर करंट रिले तो एंटरटेन करे ही करे, साथ ही साथ अगर आपकी डायरेक्शन करंट की रिवर्स हो जाती है तो वो उसको भी डिटेक्ट करवाकर ट्रिपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकता है ब्रेकर के जरिए से. ये इसका मेन फीचर है. तो डायरेक्शन ओवर करंट रिले असल में रिवर्स पावर रिले को भी सपोर्ट कर रही होती है. In the power system, अच्छा ये तो पढ़ ली, operate the direction of current block the opposite direction. Three condition must be satisfied for the operation. That would be magnitude of current उस लेवल का होना चाहिए जिसके ऊपर उसको एक्ट करना है. दूसरी चीज टाइम डिले उसमें होना चाहिए. अगर आप इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल टाइम डिले दे रहे हैं तो फिर वो चीज भी काउंट होगी. नॉर्मली इन सिनेरियोज में इंटेंशनल टाइम डिले नहीं दिया जाता क्योंकि टाइम डिले मिनिमम एज पॉसिबल रखा जाता है. एंड डायरेक्शनलिटी ये आपको देना जरूरी है कि डायरेक्शन जो है वो सोर्स टू लोड या लोड टू सोर्स होना चाहिए. अब डायरेक्शन करंट डिले है तो ऑब्वियसली रिवर्स डायरेक्शन में उसे डिटेक्ट करवाना है, बट प्रायोरिटी फिर बी होती है उसमें. द डायरेक्शनलिटी ऑफ द करंट फ्लो कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग वोल्टेज एज अ रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन. तो इसमें जो डायरेक्शन होती है करंट फ्लो की, उसमें जो मेन रेफरेंस बनाया जाता है पॉइंट को, वो आपका वोल्टेज होता है. अब लेट से यहाँ पर दो साइड के फीडर्स लगे हुए हैं और स्टेशन ए के जरिए सप्लाई दी जा रही है. तो इसमें सिटी के जरिए करंट सेंसिंग हो रही है, ये रिले है और उसकी सेंसिंग जो है वो आपकी सिटी के जरिए हो रही है. सर्किट ब्रेकर एक्ट कर रहा है डायरेक्टली लोड यूटिलाइजेशन के लिए. अब डायरेक्शन जो है करंट की वो यहाँ से यहाँ लोड की तरफ, और यहाँ पे भी स्टेशन सप्लाई दी जा रही है और डायरेक्शन जो है वो लोड की यहाँ से यहाँ की जाने पर. तो डायरेक्शन ऑफ द ट्रिपिंग अगर आपकी रिवर्स होती है उस डायरेक्शन में रिवर्स हो जाती है तो फिर ये डिटेक्ट कर लेगा सिटी के जरिए से, क्योंकि ओवर करंट डिले या डायरेक्शन ओवर करंट डिले या रिवर्स पावर डिले, इन सब की जो सेंसिंग होती है वो सिटी के जरिए होती है, क्योंकि सिटी ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस डायरेक्शन में है. अच्छा, फर्दर मोर यहाँ जो ऑब्जर्वेशन है वो वाला पार्ट जो है ऑब्वियसली हम जब परफॉर्म करेंगे तो उस वक्त ही डिस्कस करेंगे लैब परफॉर्मेंस के अंदर. तो यहाँ तक ये वाला पार्ट तो हम, क्योंकि अभी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि हम पहले थ्योरेटिकल पार्ट कर लें. परफॉर्मेंस जो है 2-3 दिन की हुआ, यूनिवर्सिटी में जब होंगे तो परफॉर्म उस वक्त कर लें. लेकिन बहरहाल इसमें जो एक जो चीज़ है वो ये है कि आपको फीचर लिखना है रिले के हवाले से कि जो इसका टास्क है कि ये रिले क्या है. जैसे इसका नाम है T2000 रिवर्स पावर रिले RPP RPR. तो इसके अंदर आपको इसके फीचर्स लिखने के कैसे काम करता है, इसमें ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ कनेक्टेड्स हैं वो किस किस के लगे हुए हैं, सिटी की सेंसिंग कैसे होती है, सिटी के कौन कौन से कनेक्शन लगते हैं, कितनी सिटीज़ के लगते हैं, पावर सप्लाई कितनी रिक्वायर्ड है, और मिनिमम मैक्सिमम करंट रेटिंग क्या है, रेंजेस, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं. क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कोई मुझे कंफर्म करेगा क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? यस सर, क्लियर है आवाज. नुमान साहब, आपके मोबाइल में मसला है या जिस डिवाइस को आप यूज़ कर रहे हैं उसका मसला है? क्योंकि लास्ट टाइम मेरी डिस्कशन हुई थी तो आपका माइक भी काम नहीं कर रहा था. मोबाइल चेंज कर लीजिए क्योंकि बाकी लोगों को आवाज़ मेरी सही आ रही है. ओके जी. यस सर, आपकी आवाज सर. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. तो आवाज़ क्लियर है. असल में कुछ स्टूडेंट्स को आवाज़ का इशू रहता है वो कहते हैं, तो इसलिए मैं एज अ रेफरेंस के तौर पे काफ़ी लोगों से पूछ लेता हूँ. थैंक यू वेरी मच. कंटिन्यू करते हैं हम आगे. मैं बता रहा था कि जो रिवर्स पावर रिले है T2000, इसके बारे में इसके फीचर्स लिखना है. बाकी परफॉर्म जब इसको हम करेंगे तो इसका मैं एक समरी दे देता हूँ. इसको हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एक्सपेरिमेंट में देने के लिए, और रिवर्स पावर देने के लिए हम करते ये हैं कि वही सप्लाई फेज सीक्वेंस उलट करके हम लोड की तरफ से लगा देते हैं.
तो इनकमिंग सप्लाई और आउटगोइंग सप्लाई दोनों तरफ से सप्लाई जब रिले को मिलती है रिवर्स पावर के डायरेक्शन में सीक्वेंस उल्टा करके, तो फिर होता यह है कि वो रिवर्स पावर को डिटेक्ट कर लेती है और उसके नतीजे में ये एज अ फॉल्ट उसको बताती है। तो ट्रेनर में परफॉर्मेंस इसकी स्लाइटली थोड़ी सी है, लेकिन ये रिले क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में देखना होगा। लैब रिपोर्ट है, ये लैब एंड हो जाएगी, उसके बारे में आपको ये बताना है कि रिले क्या है, कैसे काम करती है। तो ये सवाल इसका यहाँ पर है। तो ये इसका टास्क है जो आपको इसे परफॉर्म करना है आज की लैब के हवाले से। अगर कोई सवाल हो फर्दर किसी के जहन में या कोई डिफिकल्टी हो तो आप डिस्कस करें, वरना हम नेक्स्ट लैब की तरफ चलते हैं। Anyone of you, if have any kind of question, query or difficulty, please feel free to discuss. I will answer the kind of question and resolve your queries if you have in your mind regarding this session. कोई भी सवाल अगर आप लोगों के जहन में है तो पूछ लीजिए। साथ ही साथ अगर प्रीवियस सेशंस जो हमने इससे पहले किए हैं ऑनलाइन, अगर उसमें कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो डिस्कस कर लीजिए, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के लिए। होपफुली तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल में सब लोग क्लियर है, तो फिर हम अगली लैब की तरफ चलते हैं और उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो जितने में लोड हो रही है तो ओके जी। Further, we moving towards the understanding to understand the protection schemes of alternator and sketch level schematic diagram of alternate types of protection of alternators। तो ऑल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के लिए और ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली डिफरेंशियल रिलेज। साथ ही साथ डिफरेंशियल रिलेज इस्तेमाल करने के अलावा हम इसकी प्रोटेक्शन स्कीम भी साथ साथ इसमें लगाते हैं, जिसके अंदर सिटीज होते हैं, जिसके अंदर पीटीज होते हैं, सर्ज अरेस्टर्स भी इसमें हम नॉर्मली फिक्स करते हैं, जिसके नतीजे में एक प्रोटेक्शन स्कीम बनाई जाती है। अच्छा, साथ ही साथ ये ध्यान में रखें कि प्रोटेक्शन स्कीम जो बनाई जाती है अगर वो काम ना करे तो प्राइमरी प्रोटेक्शन पहले लगती है, उसके साथ साथ बैकअप प्रोटेक्शन भी लगती है। नॉर्मली प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन को इसके अलावा कहते हैं हम फर्स्ट प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन। ये दो नाम होते हैं जो नॉर्मली प्रोटेक्शन स्कीम के लिए डेडिकेट किए जाते हैं टर्म के तौर पर। एन ऑल्टरनेटर इज एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। An alternator is an electrical generator that converts mechanical energy to electrical energy, जो convert करता है, ठीक है, और electricity produce करता है in the form of alternating current। For reason of cost and simplicity, most alternators use a rotating magnetic field with the stationary armature। अच्छा, इसका आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी रहता है जबकि इसकी फील्ड रोटेट करती है। The major fault on transformers occur due to the short circuits in the transformers on their connections। क्योंकि जो हम प्राइमरी कनेक्शन सेकेंडरी कनेक्शंस बनाते हैं जिनके अंदर मेजर एस्पेक्ट हमारे डेल्टा टू डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा जो बन रहे होते हैं, इसके अलावा टर्शरी वाइंडिंग्स के भी कनेक्शंस होते हैं जिनको हम जिगजैग कनेक्शंस भी कहते हैं, इनमें ज्यादातर हमारे फॉल्ट अकरेंस इसकी हो रही है। द बेसिक सिस्टम यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज फॉल्ट्स इज अ डिफरेंशियल रिले, जैसे कि मैंने बताया था आपको। अब डिफरेंशियल रिले का कॉन्सेप्ट ट्रांसफार्मर के साथ यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जहन में रखें मोटर हो, जनरेटर हो, ऑल्टरनेटर हो, इन सब के अंदर जो है एक चीज होती है जिसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं, यानी दो वाइंडिंग्स, पहले हिस्से की और दूसरे हिस्से की।
तो ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा दो वाइंडिंग बेस एक डिवाइस है, प्राइमरी सेकेंडरी, जिसमें दोनों डिवाइस जो है या दोनों हमारी वाइंडिंग जो है वो स्टेशनरी रहती हैं, रोटेट नहीं करती। जबकि हम अगर मोटर की बात करें, जनरेटर की बात करें, ऑल्टरनेटर की बात करें, तो इसमें इनमें दो वाइंडिंग होती हैं, ठीक है, आर्मेचर या फील्ड, या मोटर स्टेटर या रोटर। इनमें एक चीज स्टेशनरी रहती है और दूसरी चीज रोटेट करती है। इसका मतलब ये हुआ, चाहे ट्रांसफार्मर हो गया, मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ऑल्टरनेटर हो गया, इन चारों डिवाइसेस के अंदर अपनी अपनी दो दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के केस में स्टेशनरी कोई चीज रोटेट नहीं करती, लेकिन मोटर के केस में कोई एक वाइंडिंग रोटेट कर रही होती है। तो इसीलिए इसको रिजेम्बलेंस बनाया जाता है डिफरेंशियल रिले का, ट्रांसफार्मर के लिए भी प्रोटेक्शन के तौर पे, जनरेटर, ऑल्टरनेटर और मोटर के अंदर भी प्रोटेक्शन के तौर पे डिफरेंशियल रिलेस को लगाया जाता है, क्योंकि इनमें भी वाइंडिंग के दो हिस्से होते हैं जैसे ट्रांसफार्मर के लिए होते हैं। तो इसीलिए ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रोटेक्शन हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर की, तो उसके लिए डिफरेंशियल रिले इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जिक्र यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी दो वाइंडिंग्स होती हैं, अभी हमने डिस्कस की हैं आर्मेचर और फील्ड, तो यानी दो वाइंडिंग है, तो यहाँ पे भी दो वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल रिले लगाया जाएगा। Differential relay scheme, because the differential nature of major makes this system much more sensitive than other protective systems. The most serious fault on alternator which required immediate attention and the stator winding faults. The major fault of transformer occur due to the short circuits in the transformers on their connection. The basic system used for protection against these faults is differential relay. So that's the reason we use differential relay for alternator protection, because schemes, because of the differential nature of majors, make this system much more sensitive than the other protection systems. जबकि अच्छा इसका फायदा क्या है, क्योंकि इसके अंदर सीटीज इन सिस्टम्स की सेंसिंग में बिल्ट इन लगती हैं। बिल्ट इन मींस विदाउट दैट सीटी सेंसिंग डिफरेंशियल रिले का कोई पार्ट ऑफ रोल नहीं। अब इस स्कीम को अगर हम देखें तो ये एक ऑल्टरनेटर है जिसकी एक वाइंडिंग और दूसरी वाइंडिंग है। मेन स्विच यानी इनकमिंग यहाँ से आ रही है, फिर ये चल रहा है, फिर ये इस तरह से चल रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ पे जब ये एंड होती है तो वहां से एक रेजिस्टेंस लगा के जो कि 6 ओम की है, ग्राउंड कर दिया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे इनकी वायर्स जो यहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग जा रही होती हैं, इनमें हम करंट ट्रांसफार्मर सीटीज लगाते हैं। ये जो सिटीज होती हैं इनकी सेंसिंग करने के लिए जो वायर्स यहाँ पे दी जाती हैं, इन्हें पायलट वायर्स कहा जाता है। सेंसिंग वायर्स भी कहते हैं, पायलट वायर्स भी कहते हैं। और ये डिफरेंशियल रिले की जो सेंसिंग कॉइल है वो ये लगी हुई है, जिसके जरिए से ये बताते हैं कि जी परमिसेबल करंट रेटिंग्स के मुताबिक अगर वॉयलेट तो नहीं कर रहा, अगर ज्यादा हो रही है करंट की रेटिंग्स तो फिर उसके हिसाब से इसको फॉल्ट काउंट किया जाता है। और फॉल्ट काउंट करने के बाद यहाँ पे जो है वो सर्किट ब्रेकर के जरिए से इसको ट्रिप करवा दिया। तो ये कॉइल ऑफ सेंसिंग जो है रिले की, वो डायरेक्टली इसके जरिए से ऑपरेट होती है इस सर्किट ब्रेकर को, जो कि डायरेक्टली इनकमिंग सप्लाई को कट ऑफ करवा देती है। साथ ही साथ हम इसमें मजीद चीजें डिस्कस करते हैं। स्कीम्स ऑफ ऑल्टरनेटर प्रोटेक्शन, जिसमें स्कीम्स है फेलियर ऑफ प्राइम मूवर। प्राइम मूवर आपका फेलियर हो गया। प्राइम मूवर इज अ रोटेटिंग पार्ट which can be failed. Other one is failure of field winding, overcurrent aspect, over speed, over voltage electrical protection, unbalancing loading, stator winding faults. फर्दर फिर इन्हें डिटेल में यहाँ पे बताया गया है कि प्राइम मूवर को फेल होने के रीजंस क्या हो सकते हैं, कि वो क्यों फेल होता है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो सिंक्रोनस मोटर के तौर पे किस तरह से होता है, इन्वर्टिंग रनिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो कंडीशन यहाँ पे बताई गई है। फर्दर फिर इसके दो केस बताए गए हैं कि वो इन केस ऑफ टर्बो अल्टरनेटर सेट्स के तौर पे अगर वो लगा हुआ हो तो देन उसके क्या कॉजेज होते हैं कि वो फेल हो जाता है। सेकंड केस के अंदर इन केस ऑफ हाइड्रोजनेटेड सेट अगर लगा हुआ हो टर्बो के अलावा हाइड्रोजनेटेड सेट, तो फिर उनके कॉज होने के फेलियर क्या है।
तो देन प्राइम मूवर कॉज होने के ये दो फीचर्स इन्होंने यहाँ बताए हैं। इसके बाद तीसरा फीचर यहाँ बताया गया है प्राइम मूवर फेल होने का, उसमें डीजल इंजन ड्राइव ऑल्टरनेटर्स भी होते हैं और उनके भी यहाँ पे इन डिटेल सिनेरियोज बताए गए हैं कि वो फेल होने के क्या वजूहत होती हैं, जिसके नतीजे में ऑल्टरनेटर आपका इन्वर्टिंग रनिंग के तौर पे काम करता है। फेलियर ऑफ फील्ड, जो फील्ड वाइंडिंग होती है आपकी ऑल्टरनेटर में लगी हुई होती है, उसके फेल होने के नतीजे में भी एज अ शॉर्ट पीरियड में अकरेंस होती है, और इम्पैक्ट जो डायरेक्टली इसका ऑल्टरनेटर का होता है मैनुअली, वो बस बार अकरेंस पे होता है। तो फेलियर ऑफ फील्ड वाइंडिंग के नतीजे में भी नॉर्मली शॉर्ट सर्किट अकरेंस हो जाती है, और फील्ड वाइंडिंग की सेंसिंग भी आपकी सीडी के जरिए करवाकर आप रिले सेंसिंग कॉइल के जरिए से ब्रेकर को ट्रिप करवा देते हैं। ओवर करंट के नतीजे में भी ये अकरेंस हो सकती है रिवर्स डायरेक्शन ऑफ करंट की, कि जब आप परमिसिबल ड्यूरेशन से ज़्यादा उसे चलाने लग जाएं तो फिर आपकी ओवर करंट अकरेंस के नतीजे में भी ये फॉल्ट काउंट होता है। ये भी कॉज है रिवर्स पावर होने का। ऑल्टरनेटर फेलियर होने का फर्दर इसके भी यहाँ पे डिटेल में कॉजेज बताए हैं, जो कि दो हैं, कि वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ओवर स्पीड कंडीशन से बाज़ औक़ात चल गया होता है। अच्छा, ये सिनेरियोज ओवर स्पीड का हमने लैब में अकर करने की कोशिश की है, और वो हमने करा इस तरह से है कि ऑल्टरनेटर की फ्रिक्वेंसी को जिसके ज़रिए सप्लाई दे रहे हैं यूटिलिटी से, तो उसकी हमने वहाँ पे वीएफडी लगा दी। तो वीएफडी से जैसे ही इंक्रीज़ होता है, तो वीएफडी से इंक्रीज़ होने के नतीजे में होता क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी आप कम या ज़्यादा कर पाते हैं। जब फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा कर पाते हैं, उसके नतीजे में स्पीड आपकी बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ती है तो वो आरपीएम बढ़ने के नतीजे में परमिसिबल रेटिंग से बियॉन्ड चला जाता है, और फिर शॉर्ट सर्किट अकरेंस हो जाती है, क्योंकि फिर आरपीएम हैंडलिंग करने की कैपेबिलिटी ऑल्टरनेटर में नहीं होती अगर वो ओवर स्पीड पे चल रहा हो, क्योंकि डायरेक्टली स्पीड बढ़ना फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, और डायरेक्टली वोल्टेज रेगुलेशंस भी इससे बढ़ जाती हैं। तो दैट्स अ रीजन कि ओवर स्पीड के अगर इसके नतीजे में ऑल्टरनेटर फॉल्ट कंडीशंस पे चला जाता है। ओवर वोल्टेज कॉजेज जो होते हैं उसके जरिए भी जा सकता है। वो अनबैलेंसिंग लोडिंग, अगर उस पर आप डाल लें कि जो लोड हैंडलिंग की कैपेबिलिटी है उससे बियॉन्ड जाना शुरू कर दें आप, तो लोड अनबैलेंसिंग के नतीजे में भी ऑल्टरनेटर फेलियर कॉजेज की तरफ चला जाता है। स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स की अगर हम बात करें, तो इसमें स्टेटर की जो वाइंडिंग्स होती हैं उनके फॉल्ट के भी कॉजेज हैं, कि फेलियर बिटवीन दी फेस एंड ग्राउंड, अगर ये फॉल्ट अकर हो जाता है, कि बाज़ औक़ात ये जो वाइंडिंग हुई भी होती है स्टेटर की या इसमें फील्ड वाइंडिंग, तो इनमें होता ये है कि वाइंडिंग क्योंकि लगे हुए काफ़ी टाइम स्पैन हो जाता है और ये पुरानी हो रही होती हैं, तो इनके अंदर इंसुलेशन वीकनेस हो जाती है, वाइंडिंग कमज़ोर हो जाती है, या जो इंसुलेशन बिटवीन वायरिंग लगी हुई होती है वो इश्यूज कर जाती है, या फिर वाइंडिंग बहुत ज़्यादा चलने के नतीजे में हॉट हो जाती है, तो फिर आपस में फेस टू ग्राउंड मिल जाते हैं। यानी जो भी वाइंडिंग जा रही है, इंसुलेशन वीक हो गई या इंसुलेशन वीक नहीं हुई, तो इसके अलावा जो वाइंडिंग है आपस में छिल जाती हैं लेड से, तो इनमें जो इंसुलेशन लगी होती है उसको वार्निशिंग कहते हैं, वो हटने के नतीजे में वो बॉडी से टच हो जाती है, स्टेटर से टच हो जाती है, शॉर्ट से टच हो जाती है, तो ये फेस टू ग्राउंड फॉल्ट अकर हो जाता है उसके नतीजे में। फॉल्ट बिटवीन फेजेस की अगर हम बात करें, फॉल्ट बिटवीन फेजेस क्या है? इंटरटर्न फॉल्ट, फॉल्ट बिटवीन फेजेस मतलब दो फेजेस के दरमियान फॉल्ट अकर हो जाए। इंटरटर्न फॉल्ट इन्वॉल्व टर्न द सेम फेज बाइंडिंग, विद इन टर्न्स आपने किए हुए हैं और उसको आपने कवर किया हुआ है। अब होता ही है कि इनके दरमियान फिर वाइंडिंग टू वाइंडिंग स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए, इंसुलेशन क्रिएट करने के लिए इम्प्रेग्नेटेड पेपर लगाते हैं, आप माइका लगाते हैं, बैकोलाइट लगाते हैं, या जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल है, खासतौर पे वार्निशिंग लगाते हैं, ये वीक हो जाती है, तो फिर टर्न्स टू टर्न, जिसको इंटर टर्न फॉल्ट भी कहते हैं, उसके नतीजे में सेम फॉल्ट फेज ऑफ वाइंडिंग की अकरेक्शन में फॉल्ट अकर हो जाता है, और इस फॉल्ट के साथ ही साथ जो है वो ऑल्टरनेटर फेलियर की तरफ चला जाता है। तो ये स्टेटर फील्डिंग फॉल्ट कंडीशंस कैटेगरी के अंदर आता है। अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम के साथ ये ऑपरेशन बताया गया है, जिसमें आप देखें
तो ऑल्टरनेटर की वाइंडिंग है वही सेम सिनेरियो में। जी कोई सवाल? ओके होपफुली कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो दो वाइंडिंग होती है ऑल्टरनेटर की और स्टेटर की, फील्ड वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग, तो उसके नतीजे में दोनों साइड पे सिटीज लगाई जाती हैं, अर्थ रेजिस्टेंस लगाई जाती है ताकि वो उसको ओवरकम कर सके। साथ ही साथ जो है वो सेंसिंग ऑफ सिटीज ऑफ प्रोवाइड करने के लिए कॉइल को पायलट वाइर्स लगाए जाते हैं, बैलेंसिंग रेजिस्टेंसेस यहाँ पे लगाए जाते हैं ताकि अनबैलेंसिंग को ओवरकम किया जा सके। अगर रनिंग कंडीशंस के अंदर अनबैलेंसिंग प्रोड्यूस हो रही हो, ओवर वोल्टेजेस या वोल्टेज रेगुलेशन को ओवरकम करने के लिए भी ये चीज़ की जाती है। साथ ही साथ जो सर्किट ब्रेकर, जैसे कि लास्ट सिनेरियो आपने देखा होगा, वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था इनकमिंग सप्लाई से, तो वो यहाँ से ऑपरेट करवाने के लिए हम एक्ट करवाते हैं। तो वो सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग कॉइल, मिसाल के तौर पे किसी एक कॉइल के अंदर फॉल्ट अकरेंस हो जाती है, तो उस एक कॉइल की अकरेंस के नतीजे में ये ओवरऑल ट्रिप करवा देगा। तो ये ट्रिपिंग ऑपरेशन जो है, जो ऑल्टरनेटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन सेंसिंग कॉइल को ट्रिपिंग ऑपरेशन के जरिए एक्ट करवाने का ये तरीका, ये ट्रिपिंग कॉइल ऑफ सर्किट्स कहलाते हैं, जो कि सर्किट ब्रेकर को डायरेक्टली जा रहे होते हैं। ये वो ऑपरेशन है ऑल्टरनेटर का। साथ ही साथ अब इसमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो ऑल्टरनेटर है जब ये रोटेट कर रहा है तो एक या तो अर्थ हो जाएगा, लेट से कहीं ग्राउंड हो गया, या फिर दोनों के दरमियान ये वाइंडिंग्स आपस में मिल गई, कोई वायर शॉर्ट हो गया, तो इनकी शॉर्टेज के नतीजे में फॉल्ट अकरेंस होती है। ठीक है, पहले वो सिंपल सिनेरियो था, अब उसके फॉल्ट अकरेंस होती है, तो फिर ये एक्ट कैसे करेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोटेक्शन ऑफ डिफरेंशियल रिले, ये उसके बारे में डायग्राम हमें बता रही है। मॉडिफाइड डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ऑल्टरनेटर के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में ये स्कीम बताई जा रही है इसमें कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। इफ द नेचुरल पॉइंट ऑफ स्टार कनेक्टेड ऑल्टरनेटर इज अर्थ through a high resistance protection scheme which is mentioned in blue diagrams, above diagram, it will not provide sufficient sensitivity for the earth fault. It is because the high earthing resistance will limit the earth fault current to a low value, necessitating relays with a low current setting if adequate portion of the generator winding is to be protected. However, too low a relay setting is undesirable for a reliable stability on heavy through phase to fault. In order to overcome these difficulty, to modified form of differential protection is also be used in which the setting of earth fault reduced without the impairing the stability. अच्छा, अब इसके लिए इसमें मॉडिफाइड फीचर एक इन्होंने लगाया है जिसके बारे में ये डिस्कस कर रहे हैं। वो बता ये रहे हैं कि जब यहाँ सेंसिंग आप करवा रहे होते हैं तो उस सेंसिंग के साथ जो आपके फेस फॉल्ट रिलेज हैं सेंसिंग की डिफरेंशियल रिले की, उनके साथ साथ अर्थ रिले यहाँ पे लगा दें। अब उसमें होगा क्या कि फॉल्ट अकरेंस अगर होती है सेंसिंग में तो डायरेक्टली उसे अर्थ कर दिया जाए। तो ये उसको मॉडिफाइड फीचर के तौर पे बताया गया है, जबकि इससे पहले वाले में मॉडिफाइड फीचर ये चीज़ नहीं थी। जस्ट वो एक्ट हुआ तो उसको अर्थ करने की बजाय या ग्राउंड करने की बजाय उसको ट्रिपिंग ऑपरेशन की तरफ लेके जाया जाता है। लेकिन सेफ साइड अगर इस ड्यूरेशन के अंदर आपका ट्रिपिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक, या उसको स्लाइटली डिले के तौर पे वो ले गया या वो सेंस टाइम पे नहीं कर सका, तो उस सेंसिंग के दौरान उसे अर्थ रिले की कॉइल के जरिए से उसे अर्थ कर देना है। ये ऑपरेशन मॉडिफाइड एस्पेक्ट में यहाँ पे इस तरह से बताया गया। अगर आप इसमें देखें एक सिंगल डायग्राम में इन्होंने सीटी डिफरेंशियल रिले सेंसिंग के साथ ही साथ ये भी बताया है कि आप फॉल्ट अकरेंस की ड्यूरेशन में अर्थ रिले के जरिए से इस फॉल्ट को अर्थ भी कर सकते हैं, ग्राउंड भी कर सकते हैं। ऑपरेशन कैसे होगा जी? अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन करंट एट द लो एंड ऑफ ईच स्टेटर वाइंडिंग विल बी इक्वल। जब आपका नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन चल रहा होगा, देयरफॉर देयर इज अ बैलेंस सर्कुलेटिंग करंट इन द फेज। तो बैलेंस सिस्टम के अंदर जो करंट चल रहा होता है वो बैलेंस करंट होता है और वो सर्कुलेटिंग करंट भी होता है इन द पायलट फेज वायर एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द ऑपरेटिंग कॉइल। क्योंकि ये नॉमिनल कंडीशंस है और नॉमिनल कंडीशंस के अंदर आपका फॉल्ट करंट अकरेंस नहीं हो रही होती या ऑपरेटिंग कॉइल जो है वो ऑपरेट नहीं करती जब नॉर्मल बैलेंस कंडीशन चल रही है। तो कॉन्सिक्वेंटली द रिलेज रिमेन इनऑपरेटिव। तो वो जो जो सेंसिंग रिले है वो इनऑपरेटिव रहेगी। और इसका अपोजिट सिनेरियो क्या होगा कि अगर
अर्थ फॉल्ट प्रोड्यूस हो गया, यानी कि ये एक वायर जो है या वाइंडिंग जो है वो बॉडी से टच हो गई, या ये दोनों आपस में टच हो गए, इसके नतीजे में फॉल्ट अकर होगा, और फॉल्ट अकर होने के नतीजे में बैलेंसिंग ऑफ करंट अनबैलेंसिंग होगी। साथ ही साथ ट्रिपिंग से पहले अर्थ रिले यहाँ पे लगी हुई होगी इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के साथ, तो फॉल्ट अकरेंस ऑफ सेंसिंग के ड्यूरेशन में ही ये ओवर करंट जो है अर्थ हो जाएगा। ये यहाँ पे ड्यूरेशन इसका बताया गया। बाकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है वो हम करेंगे जब हम परफॉर्म कर रहे होंगे। व्हाट इज एन ऑल्टरनेटर, इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द फॉल्ट अकर इन इन द ऑल्टरनेटर, ये चीज़ बतानी है। साथ ही साथ ये लैब रिपोर्ट यहाँ पे बतानी है कि आपने इस लैब में क्या सीखा है, और लर्निंग आउटकम के तौर पे लैब रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख के ये लैब भी फुलफिल हो जाएगी। तो ये एक समराइज में कर देता हूँ इस लैब में हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं। ऑल्टरनेटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमने ये डिस्कशन की है इसमें। उसके बाद ऑल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंशियल रिले जो लगाई जाती है वो फीचर्स कैसे हैं इसमें, प्राइमरी और सेकेंडरी जिस तरह ट्रांसफार्मर में लगता है इसी तरह से इसकी दो वाइंडिंग के अंदर जो हम आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग या जो स्टेटर और रोटर के लिए दो साइड पे कॉइल लगी हुई होती हैं उनकी सेंसिंग ऑफ सिटी के जरिए से रिले ऑफ कॉइल जो कि डिफरेंशियल रिले कॉइल है उसको यहाँ पे सेंसिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सर्किट ब्रेकर से इनकमिंग सप्लाई यहाँ से आ रही होती है। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि फेलियर ऑफ कॉजेज क्या होते हैं ऑल्टरनेटर की प्रोटेक्शन के लिए, और फिर हमने उन्हें तफसील से डिस्कस किया यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू करते हुए। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि ये नॉर्मली एक्ट कैसे करता है, ट्रिपिंग कॉइल को वो या ट्रिपिंग सर्किट को वो डायरेक्शन किस तरह से देता है, ये चीज़ हमने इसमें डिस्कस की। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसमें अगर फॉल्ट अकर हो तो वो होता कैसे है, ये फॉल्ट अकरेंस और ये फॉल्ट अकरेंस ये बताया गया है यहाँ पे। उसके बाद जो है